ये तो कोई बात नहीं. ओके, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एट 90 degree at angle Q, PR plus QR is equal to 25 centimeter, PQ is equal to 5 centimeter. Determine all trigonometrical ratio. जबकि आप बता रहे हैं एक्सरसाइज नंबर आपका नाम 8.3 एनसीईआरटी की किताब का एग्जांपल नंबर आपका नाम क्वेश्चन नंबर 10 है. 8.1 का क्वेश्चन नंबर 10 है. कोई दिक्कत नहीं आपका नाम. तो सॉल्यूशन में देखिए, दिस इज ट्रायंगल P यहाँ लिखिए या यहाँ लिख देखो. Q तो आपका इट इज 90 डिग्री. ये इट इज अंडरस्टूड. देखो Q बीच में है और वैसे भी 90 डिग्री है. 90 डिग्री यू हैव मेड हियर रखना. एंड दिस इज PQ इज इक्वल टू दिस इज 5 सेंटीमीटर. ये गिवन. दिस इज गिवन. एंड द अनदर थिंग इज आपका नाम देखो. दिस इज ये आपका नाम PR एंड प्लस QR इज इक्वल टू आपका नाम देखो. दिस इज 25 सेंटीमीटर. ये भी आपका गिवन है इक्वेशन नंबर 1. ये आपका देखो. एंड आपका PQ इज इक्वल टू आपका नाम देखो 5 सेंटीमीटर. दिस इज द सेम. बोथ आर गिवन. अब आप P मैंने यहाँ ले लिया. यू कैन आल्सो टेक हियर, लेकिन Q आपका नाम वहीं पे आएगा क्योंकि राइट एंगल एट आपका नाम Q है लिखा हुआ. तो Q इज 90 डिग्री. ये उसने दिया बना देखो. दिस इन राइट एंगल. First it was given, second it was given in RQP. Now applying Pythagoras theorem. The Pythagoras theorem, hypotenuse square is equal to now base square and plus perpendicular square. Hypotenuse is what? That is PR ka square equal to base QP ka square, and now this is your QR ka square. तो ना देखो PR का स्क्वायर आपका नाम इक्वल टू QP इज आपका नाम 5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड प्लस Q. अब देखो ये कितना है. देखो PR इज इक्वल 25 माइनस Q. सेकेंड इसको थर्ड कर देते हैं. PR प्लस QR इज इक्वल कितना. तो PR इज इक्वल देखो it is moved on the right hand side which is known as आपका OT. In place of PR, you will write up now this is 25 minus QR का whole square. In place of PR, you have kept up now this is 25 minus QR का whole square equal to this is 5 का square यहीं लिख देता हूँ. अभी 25 नहीं लिख रहा हूँ. अब आप करें yes. A minus B का whole square is equal to A square minus 2AB and plus B square. Where A minus B, where A is equal to it is 25 and B is equal to देखो this is the QR. A minus B का whole square. तो now देखो this A का square जी अभी पहले minus 2 फॉर्मूले में the value of A is 25, the value of B is QR and plus B square means QR का whole square equal to 25 and plus QR square. On the right hand side this. So now देखो that's 625 minus 50 QR and equal to देखो this is 25 by this square minus 25 I am bringing here and it is going there. Now देखो this is QR square or minus QR square which is known as OT. क्लियर हो गया सब. ये अब आप देखो this तो 600 में से आप कहीं जाएंगे 600 equal to 50 QR फिर OT minus में. So you have to find out the value of this QR. QR is equal to 600 over 50. ये खल्लास अपना तो कितना हो गया जी 12. तो ना तो therefore QR is equal to अपना देखो 12 सेंटीमीटर. तो ना तो therefore PR is equal to देखो 25 minus QR है. तो ना 25 minus 12 is equal to 13 सेंटीमीटर. तो PR is equal to अपना अभी PR this is hypotenuse and hypotenuse is equal to 13 centimeter and QR is what? This is perpendicular and perpendicular is what? 12 centimeter. Clear? अब देखिए. He has only asked you according to your NCERT कि now please ये लो sin P निकालिए. आपका देखो ना he is saying cos P निकालिए and he is saying tan P. क्यों? Because you are the beginners. मेरे लिए आप बिगिनर्स हैं.
तो आपका देखो दैट्स वाई आपका नाम यू हैव टू राइट इन अ वेरी फर्स्ट कंबाइंड फॉर्मूला ज्वाइंट वेंचर जो मैंने कहा था साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा नाउ कॉट थीटा सेक थीटा एंड आपका देखो नाम दिस कॉसेक थीटा इक्वल टू पढ़ ले बेटा पढ़ ले हम तो हो गए बर्बाद तो नाम अभी इन राइट एंगल ट्राइंगल आपका आर क्यू पी में साइन पी 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 whatever the angle you have in front of that is taken as a perpendicular ये देखिए अपना तो इसको तो sin p is perpendicular over hypotenuse तो perpendicular is what qr over hypotenuse pr तो now that is आपका कितना है 12 upon 13 is it clear cos p cos cos this is base over hypotenuse base is qp over pr is what 5 by 10p 10p is equal to now perpendicular over base perpendicular is what qr over qp is equal to 12 by he has asked only this determine उसने जो क्वेश्चन था determine sin p अपना cos p and अपना 10p उसने बोला था बस आपने एक कॉपी लिया एंड उसमें आपने इतना किया और आपका हो गया होमवर्क हो गया आपका स्कूल का अब आप आइए आपका ना देखो 10,000 अब आप एक्स्ट्रा वर्क के लिए आ जाइए जी 10p has a reciprocal if अब now we will work on reciprocal अभी आप बिगिनर्स हैं तो मेरे को ये देखो तो रेसिप्रोकल cot p p अभी cot p तो cot के लिए थीटा बेस ओवर परपेंडिकुलर बेस ओवर परपेंडिकुलर बेस इज व्हाट 5 ओवर क्लियर हो गया सर नाउ cos p का आपका जो दैट इज sec थीटा हाइपोटेन्यूज ओवर बेस हाइपोटेन्यूज इज आपका 13 and by and cosec p इस इक्वल टू आपका नाम देखो दिस व्हाट h by p तो देखो आपका h by p h का मतलब आपका क्या होगा जी 13 by दिस इज 13 मतलब एनसीईआरटी आपकी पूरी हो गई अब हम एक्स्ट्रा के लिए जा रहे हैं देखिए these both are reciprocal 10 and cot sec और आपका this is also reciprocal sec and cosec is reciprocal अब देखिए ये हो गया आप एक्स्ट्रा घर में बैठ के कर रहे हैं अब आप अब आपने कहा देखो यार ठीक है ये हो गया अब हम जरा रेसिप्रोकल में भी वर्क आउट करते हैं देखो अब साइन पी इज इक्वल टू आपने बोला आपका 12 by 13 ये तो सब करना अब मैं सिर्फ ये ले रहा हूँ आपका देखो तो देखो इसका मतलब देयरफॉर cosec p इज इक्वल टू 1 upon sin p रेसिप्रोकल होते हैं सब 1 upon sin p क्या है 12 by 13 तो देखो इससे आपको a by b by c continuously when you write the formula आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी 13 1 जा 13 तो आप करेगा ना जैसे ये आप करेगा cosec p is equal to 13 1 जा 13 by 2 आपके सामने गॉट इट क्लियर समझ रहे हैं तो नाम देखो बस उसके बाद आपका नाम देखो दिस cos p is what दिस इज देखो आपका 5 by 13 आपका नाम इसका मतलब आपका देखो दिस sec p is equal to 1 upon cos p because we are working on reciprocal sec और cosec आपका देखो 1 upon cos p is what cos p कितना है 5 by 13 by same formula by this a is separate b by c 13 by 4 कहाँ है sec का है 13 by 4 ठीक है इधर प्लीज now फिर आपका देखो ना दिस इज 10 10p इज व्हाट 10p देखो आपका 12 by 5
So now cot P is reciprocal of 10P and 10P is reciprocal of 1 upon 10P is what? 12 by 5. The same formula, A one separate, B by C separate. So now this. क्लियर हो गया? इससे क्या हुआ? ये फॉर्मूला भी आपको याद हो गया और ये फॉर्मूले भी आपको याद हो गया. ठीक है. अब आइए और एक्स्ट्रा क्या कर सकते हैं जी. नाउ सी साइन पी इज इक्वल टू, फिर देखो एक्स्ट्रा कर रहे हैं हम आपका 12/13. तो आपने देखो आइडेंटिटीज आपने अप्लाइड की, यू हैव अप्लाइड द आइडेंटिटी. तो देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. देखिए तो साइन वी हैव द वैल्यू, इसका मतलब देखो आप क्या करेंगे, यू विल राइट साइन स्क्वायर पी प्लस कॉस स्क्वायर पी इज इक्वल टू 1. वी हैव टू फाइंड आउट कॉस स्क्वायर पी. तो देखो कॉस स्क्वायर पी इज इक्वल टू 1 माइनस देखो साइन स्क्वायर पी. दिस इज OT. व्हेन यू हैव टू फाइंड आउट cos p is equal to plus minus 1 minus sin square p. तो देखो यस ये तो cos p is equal to, अब प्लस माइनस को हटा दीजिए, 1 माइनस sin p is what? 12/13 and a square, इसका दैट इज स्क्वायर. तो देखो दिस 1 माइनस 144/12 का स्क्वायर एंड 13 का स्क्वायर. तो ना देखो दिस तो cos p is equal to 169 1 जा 169 minus 144, this is 144 sir, over this is 169 which is known as your LCM, and this 169 is